وہ صورتیں نہ جانے کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترسیاں ہیں۔ Fire! Shit! They have no sense at all. آج ہمارا بھی ہے، ہم بہت کلوز کھڑا ہوا۔ Authorities نے آڈینس کے کھڑے ہونے کا پروویژن ادھر ہی کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ توپ ایسے کیسے چلائی گئی کہ آس پاس کھڑے لوگوں اور تماشا دیکھنے والی خواتین کے کپڑے اڑنے والے خون کے چھینٹوں سے خراب ہوئے۔ آداب ناظرین، آج ذکر مولوی محمد باقر کا۔ 1857 کے غدر سے پہلے آپ دلی سے نکلنے والے اردو کے سب سے زیادہ بااثر، دلیر اور عمدہ اخبار دلی اردو اخبار کے مدیر تھے۔ آپ نے اپنی صحافت کے توسط سے برطانوی سامراجیہ کا مقابلہ ڈٹ کر کیا۔ 1857 میں ہندوستان کی تاریخی سرزمین نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا ظہور دیکھا تھا۔ میرٹھ سے آئے باغی سپاہیوں کے رابطے میں آنے کے بعد بہادر شاہ ظفر بھی آزادی کی کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے بے قرار ہو گئے تھے۔ ایسے میں مولوی محمد باقر نے خود کو پوری طرح شاہ وقت کا ساتھ دینے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کارتوس میں سور اور گائے کی چربی کا استعمال یقیناً مذہب خراب کرنے کی سازش ہے۔ اگر سپاہی بپھر گئے تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی غیر ملکی اقتدار کی ہم ہندوستانیوں پر مظالم کی فہرست لمبی ہے۔ اور سچ پوچھئے تو مجھے تو ابھی تک یقینی نہیں آ رہا ہے کہ انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ اب ہم اس کا حصہ ہیں اور حضور نے انقلابیوں کی سرپرستی قبول کر لی ہے۔ انقلاب بھی آ گیا اور ہم بھی اس میں شامل ہو گئے، لیکن ہمیں بھولے بھالے عوام کی فکر ہے۔ اب تک فرنگی ان کے سیاہ سفید کے مالک بنے بیٹھے تھے، اب اچانک ہمارے نام کا زور زورا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بوکھلا جائیں اور بوکھلاہٹ میں کچھ الٹا سیدھا کرنے لگیں۔ آپ اس کی بالکل فکر مت کیجیے حضور، میں اور میرا اخبار آپ کا اور انقلاب کا ہمیشہ ساتھ دیں گے، عوام کی رہنمائی کریں گے۔ مولوی محمد باقر مشہور زمانہ شاعر شیخ ابراہیم ذوق کے ہم جماعت اور دوست تھے۔ دونوں میاں عبد الرزاق کے درس میں شامل تھے۔ استاد محترم بتا رہے تھے نا کہ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا اقتدار شہنشاہ جہانگیر کے لائسنس یافتہ فرنگی تجارتی ٹولے ایسٹ انڈیا کمپنی کو منتقل ہو گیا ہے۔ ہاں باقر، یہ کمپنی ہمارے ملک میں قریب 100 سال سے کاروبار کر رہی ہے۔ دیکھو میرا پتھر کتنا دور جا کے گرا۔ میں اس سے زیادہ دور پھینک سکتا ہوں۔ ایسے پتہ نہیں چلے گا، یہی رکتے ہیں پھر مقابلہ ہوگا۔ مولانا انگریزوں کی قائم کردہ اس درسگاہ کے پہلے طالب علم تھے۔ یہاں آپ نے پڑھا بھی اور پڑھایا بھی۔ آپ 7 سال دہلی کالج میں معلم رہے، پھر محکمہ کلیکٹری میں ملازمت کی، تحصیلداری کی، پھر 16 سال محکمہ بندوبست میں سپرنٹینڈنٹ رہے۔ سنا ہے آپ اپنی ملازمت سے مستعفی ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں صحیح سنا ہے۔ لیکن اچانک یہ فیصلہ کیوں؟ نہیں بھائی نہیں، اچانک نہیں، یہ میں بہت دن سے سوچ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ بھائی دیکھو، بات دراصل یہ ہے کہ انگریزوں کی جو یہ نسل امتیازی پالیسی ہے نا، اس سے میں بہت بیزار ہوں، اور یہ جو عیسائیت کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں نا، اس سے مجھے بہت کوفت ہوتی ہے، اور پھر تنخواہ بھی کم ہے۔ لیکن ہاں، گورنمنٹ نے جو یہ پریس ایکٹ پاس کیا ہے نا،
इससे अखबार निकालने में आज़ादी हासिल हो गई है। तो अब मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस रियायत से फ़ायदा उठाया जाए और एक हफ्त रोज़ा दिल्ली अखबार के नाम से जारी किया जाए। अच्छी सोच है। 1836 में मौलवी मोहम्मद बाकर ने दिल्ली से छपने वाले अखबार दिल्ली की दागबेल डाली, जो बाद में दिल्ली उर्दू अखबार कहलाया। इसके साथ आपको एक प्रेस की ज़रूरत महसूस हुई। किस्मत ने साथ दिया और एक बहुत अच्छा प्रेस आपको मिल गया। हुआ ये कि दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता एक लिथो प्रेस था, जिसमें वही किताबें छापी जाती थीं जो कॉलेज के निसाब में शामिल थीं। इसलिए लंबे अरसे तक प्रेस खाली पड़ा रहता था। मिस्टर टेलर जब कॉलेज के प्रिंसिपल बने तो उन्हें लगा कि इस प्रेस को फरोख्त कर दिया जाए। साहब, मौलवी बाकर साहब आए हैं। भेजो अंदर। आदाब मौलवी साहब। आदाब आदाब। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। और सुनाइए, सब खैरियत है ना? आजकल सुनने में आया है कि आप कहीं दस्त वस्ता बेखौफ नमाज जनाजा सुन्नी मजहब की पढ़ाते हैं और कहीं हाथ खोलकर शिया के जनाजे में नमाज पढ़ाते हैं। क्या फर्क पड़ता है जनाब, शिया हों या सुन्नी, पैरवी तो उस एक ही मजहब की करते हैं जिसे इस्लाम कहते हैं। क्या बात है मौलवी साहब, आप तो बड़े एतदाल पसंद हैं। आपकी सोच और नजरिया काफी वसी है। जी दुरुस्त फरमाया, लेकिन मेरी वसी सोच और नजरिए के दायरे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा तस्लीम करना नहीं समा सकता। आजकल सुनने में आ रहा है कि आप ईसाइयत की तबलीग कुछ ज्यादा ही जोर शोर से कर रहे हैं। माफ कीजिए प्रिंसिपल साहब, हिंदुस्तानी लोगों का मजहब तब्दील करवा के उन्हें ईसाई बनाना वसी सोच और नजरिया नहीं कहलाएगा। हाय, आपके और हमारे मरासिम पुराने हैं, बस मजहब का मुद्दा कश्मकश पैदा कर देता है। खैर छोड़िए इस किस्से को, कुछ और सुनाइए। जी, खबर है कि आप दिल्ली कॉलेज का प्रेस फरोख्त करना चाहते हैं। जी, आपने सही सुना है। दरअसल प्रेस में वही किताबें छपती हैं जो निसाब में हैं, और निसाब की किताबें साल में एक बार छपती हैं। बाकी सारा साल प्रेस खाली रहता है। इसलिए मेरे ख्याल से प्रेस को फरोख्त कर देना बेहतर है। जी, मैं आपकी प्रेस खरीदना चाहता हूँ। दिल्ली अखबार के लिए मुझे एक प्रेस की जरूरत है। पेशकश मुनासिब है। आप ये प्रेस खरीदना चाहते हैं, इसकी इत्तला मैं मैनेजमेंट तक पहुंचा दूं, फिर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे। मौलवी मोहम्मद बाकर अपनी मुलाजिमत के दौरान कलेक्टर के दफ्तर के कामकाज को देख चुके थे। सरकारी दफ्तरों की खराबियों और बिदतों से अच्छी तरह वाकिफ थे और इस्लाह के ख्वाहां थे। आप अपने अखबार में जेलों के दीगर गूं हालात, सरकारी हुक्काम और पुलिस की ज्यादतियों, इक्तिसादी बदहाली, जराइम के इर्तिकाब और अवामी फलाह की खबरें आम छापा करते थे। आपके कलम में मुल्क की भलाई की शुआएं भी चमकती थीं और अंग्रेज़ों की नस्ल इम्तियाजी पॉलिसी की मजम्मत भी। आपने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तानी जो नई तालीम से बहरावर हैं वो अंग्रेज़ों से बेहतर काम करके दिखाते हैं। मौलवी मोहम्मद बाकर खुद तो एक मिसाली शख्सियत थे ही, इसी के साथ उन्हें उर्दू अदब में आब हयात कलमबंद करने वाले पाए के मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसे काबिल फर्जंद के वालिद होने का शरफ भी हासिल है।
बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1825 में दिल्ली कॉलेज कायम किया था, जो कदीम और जदीद उलूम का संगम है। तुम तो जानते ही हो बेटा कि मैं इस जदीद मदरसे का पहला तालिब इल्म हूं। यहाँ मैंने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आपकी ख्वाहिश है कि मैं भी यहाँ से तालीम हासिल करूँ। देखो बेटा, बात यह है कि मैंने मगरिब की जो अच्छी बातें हैं उनका हमेशा खैर मकदम किया, लेकिन वहाँ की किसी भी गलत रविश को किसी भी दबाव में आकर मैंने कभी नहीं अपनाया। अब ये जो दिल्ली कॉलेज के ईसाई असातिज़ा हैं, ये अपने मजहब की खूब तबलीग करते हैं, जिसके ज़ेरे असर हमारे कई अजीज ईसाई हो गए। आप मेरी तरफ से हर तरह से बेफिक्र रहिए। मैं इंशाअल्लाह हमेशा सिरात मुस्तकीम पर गामजन रहूँगा। शाबाश। मौलवी मोहम्मद बाकर हिंदू मुस्लिम यकजहती के पैरोकार थे और मुगल हुकूमत के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पॉलिसी के हामी। अपनी तहरीरों में आपने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग को जिहाद करार दिया था। 10 मई 1857 को शुरू हुए इनकलाब की लपेटें लपेटे बागी सिपाही जब 11 मई को मेरठ से दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली भी फौरन ही इसके असर में आ गई। 17 मई को जब मौलवी साहब के अखबार का शुमारा मंजरे आम पर आया तो उसमें लिखा था, वो हुकाम ज़ाहिरुल इस्तेहकाम जिनके इस्तक़लाल हुकूमत व इंतज़ाम के ज़वाल का ना उनको ख्याल था और ना किसी गफ़ाल को वहमे गुमान कभी आ सकता। एक तुरफ़तुल ऐन में वो नुमायां हो गया। मौलवी मोहम्मद बाकर दिलो जान से फरंगी इख्तिदार के मुखालिफ थे। आप अपने वक्त के नए मुस्लिम जहन का जी वक़ार रुकन थे। मुल्की मामलात और सियासत में अच्छी दिलचस्पी लेते थे और अपने गिरदो पेश से बाखबर रहते थे। हुजूर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारत के पर्दे में हिंदुस्तान की दौलत की जो लूट खसोट की है उसकी खबर सबको है और हमारे तहजीब व तमद्दुन में गाहे बगाहे उनकी मुदाखलत रहती ही है। हाँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे पास फौज नहीं है, मेरे पास तनख्वाह देने के लिए रुपया नहीं है। हुजूर, इसके बावजूद रियाया के दिल में आपका जो एहतराम है, उसकी नजर में आपकी जो साख है, वो इस तूफान को एक मुनासिब किनारे तक जरूर पहुंचाएगी। लॉर्ड डलहौजी ने जो आईनी सिस्टम मुरतब किया है, उसकी रूह से ऐसे हुक्मरान जो औलाद नरीना के बगैर वफात पा गए, उनका हक़ मिल्कियत हराम कर दिया है और अब उसकी नजर मुगलिया तख्तो ताज पर है। हुजूर, आपको अपनी तख्तो ताज और अवाम की बका के लिए सिपाहियों की सरपरस्ती जरूर कबूल करनी चाहिए। मौलवी मोहम्मद बाकर हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के खिलाफ थे और गैर मुल्की इस्तेमार से मुल्क को आज़ाद देखना चाहते थे। आपकी शाह वक्त से अच्छी राहो रस्म थी और आपने न सिर्फ अपने अखबार के जरिए बल्कि बजाते खुद मर्दे मैदान बनकर सैफ़े यदे इलाही के जरिए आज़ादी तहरीक की बका के साथ बादशाह का हर तरह से ताउन कर आज़ादी हासिल करने की कोशिश की। आप अपनी जमात के साथ कई मरतबा बनियत जिहाद जंग में शामिल हुए और अंग्रेज़ी फ़ौज पर हमला भी किया। बगावत हिंद आगरा के 1859 जुलाई के शुमारे से पता चलता है कि बादशाह को आप पर बहुत एतमाद था। हुजूर, मौलवी मोहम्मद बाकर छापे खाने वाले तशरीफ लाए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। हुजूर ने याद फरमाया। जी, आइए।
जी शुक्रिया हुजूर। हम बहुत परेशान हैं और परेशानी के आलम में किसी अपने पर ही भरोसा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, फरमाइए। खबर है कि मालगुजारी की रकम लेकर जो प्यादे दिल्ली आ रहे थे उन्हें मेवातियों ने घेर लिया है। तो हुजूर, ऐसे में मेरे लिए क्या हुक्म है? आप फौरन 2 कंपनियां सिपाही और 1 तोप सवार लेकर जाइए और खजाने को हिफाजत से लेकर आइए। जी बेहतर। 11 मई 1857 के अपने रोजनामचे में अंग्रेजों के मुखबिर जीवन लाल ने मौलवी बाकर की बहादुर शाह जफर से कुर्बत का जिक्र करते हुए लिखा है, आज के दिन बादशाह ने मौलवी मोहम्मद बाकिर और मौलवी मोहम्मद कादिर को बारियाब होने की इज्जत बख्शी, क्योंकि उन्होंने अपने फराइज़े मनसबी को निहायत जहानत और बहादुरी से सरअंजाम दिया था। मौलवी मोहम्मद बाकर अपने अखबार में ऐसे मज़ामीन कलमबंद करते थे जो मुसलमानों को बादशाह की मदद करने की ताकीद करते थे। माना जाता है कि आप बहादुर शाह जफर की आज़ाद हुकूमत के वज़ीर इत्तलाआत और जंगी नामानिगार भी थे। रुड़की से एक पलटन वहां के अंग्रेजों को मारकर इस तरफ आई थी। मेरठ में उनसे गोरों का सामना हुआ। ताईद इलाही और इकबाल शहनशाही के पलटन ने उन लोगों को बसपा करके शिकस्त दी। वो लोग फिर से अपने दमदमे में घुस गए और 200 गोरे मारे गए। पहली जंग आज़ादी के आगाज में कमज़ोर समझे जाने वाले हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेज़ों का जमकर मुकाबला किया था और उन्हें शिकस्त दे दी थी। अंग्रेज़ों को जान से मार डालना उनका नस्बुल ऐन था। अंग्रेज़ जान बचाते फिर रहे थे। क्यों उगल मचा रहे हो भाई? हैं? टेलर मेरे यहाँ क्यों होने लगा? उससे आपका गहरा दोस्ताना है। अरे दोस्ताना है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे यहाँ आके पना लेगा। अब मेरे ख्याल में वो अंग्रेजी फौज से जा मिला। हो सकता है भाइयों, क्योंकि वो जानता है कि मौलवी साहब से उसकी गहरी दोस्ती है और लोग उसे यहीं ढूंढने आएंगे। चलो कहीं और ढूंढते हैं। टेलर साहब, फिलहाल तो खतरा टल गया। मौलवी साहब, मेरे ख्याल से मेरा यहाँ रुकना आपके लिए और मेरे लिए गैर महफूज है। जी हाँ, ये तो है। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मगर कहाँ, कैसे? कश्मीरी दरवाजे से निकलकर मैं अंग्रेजी फौज के पास पहुँच जाऊँगा। लेकिन टेलर साहब, लोग आपको तलाश कर रहे हैं। जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ भी गैर महफूज हूँ। इजाज़त दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो कम से कम लिबास तब्दील कर निकलिए। मेरा मतलब ये है कि ये अंग्रेजी लिबास बदल कर और हिंदुस्तानी लिबास ज़ेब-ए-तन कीजिए, यही बेहतर रहेगा। अच्छी बात है।
मौलवी साहब, ये दिल्ली कॉलेज के मुतालिक कुछ अहम दस्तावेज हैं। ये कहीं शोरिश की नजर ना हो जाए, इसलिए अपने साथ ले आया था। अगर दिल्ली पर अंग्रेज हाकिम का तसल्लुत हो जाए तो ये कागजात अंग्रेज हाकिम की नजर कर देना। खुदा हाफिज। बागी टेलर की ताक में थे। टेलर के घर से बाहर निकलते ही बागियों ने उन्हें घेर लिया और हलाक कर दिया। पहली जंग आज़ादी, बादशाह और सिपाहियों को मौलवी साहब का हर तरह का ताअवुन इतना ज़बरदस्त था कि बहादुर शाह ने अपने नाम की मुनासबत से आपके अखबार का नाम अखबारुल ज़फ़र कर दिया था। आपके अखबार के आखिरी 10 शुमारे इसी नाम से शाया हुए। मौलाना फजले हक खैराबादी की तहरीक पर दिल्ली की जामा मस्जिद में तकरीबन 300 उलमा ने इत्तेफाक़ राय से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तारीख़ी फ़तवा जिहाद जारी किया था, जो मौलवी बाकर के दिल्ली उर्दू अखबार में छपा था। इसके जवाब में शहर में मौजूद कुछ अंग्रेज़ हामियों ने 5 जुलाई 1857 को एक इश्तिहार जामा मस्जिद के दरवाजे पर चस्पा किया था कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद शरीयत के ख़िलाफ़ है। मौलवी बाकर ने इंतशार और गलत फहमी पैदा करने वाले इस इश्तिहार का तवील जवाब शाया किया और उन हालात और वाक़यात की निशानदही की जो इनक़लाब का सबब बने। तो ये जवाब दिया है मौलवी बाकर ने हमारे उस इश्तिहार का, जो 5 जुलाई को हमने जामा मस्जिद के गेट पर चिपकाया था। यस सर, इस आर्टिकल के जरिए ये मौलवी पब्लिक को उकसा रहा है और इसके साथ ये एम्परर की आर्मी में भी शामिल है। इसके अलावा ये कई मर्तबा अंग्रेजी फौजों पर हमला कर चुका है। ये देखिए 17 मई का दिल्ली उर्दू अखबार, जिसमें मौलवी बाकी ने दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल फ्रांसिस टेलर के मर्डर पर आर्टिकल लिखा है। काबिल इबरत है हाल दुनियाए दुम का के बावजूद इस ज़रकसीर के दिन भर लाशा बरहना खाको खून में गलता पड़ा रहा। देखने वाले कहते थे कि फकीरी लिबास उस वक्त था और मुंह पर खाक मली हुई थी। ये सच है ना कि प्रिंसिपल टेलर ने बागियों से बचने के लिए मौलवी बाकर के घर पर बना लिया था? यस सर। पहली जंग आज़ादी नाकाम साबित हुई। दिल्ली पर एक बार फिर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ। मौलवी मोहम्मद बाकर मिस्टर टेलर की हिदायत के बमूजिब जब उनके कागजात लेकर अंग्रेज़ हाकिम के पास पहुंचे तो वो कागजात देखते ही आग बगूला हो गया। मिस्टर टेलर कहाँ हैं? जी वो तो मेरे हाथ में ये कागजात थमा कर चले गए। तुमने इतने खतरे में उन्हें जाने क्यों दिया? जी वो मैंने तो क्या? अभी कहाँ है मिस्टर टेलर? जी उन्हें तो बागियों ने मार दिया। मार दिया या मरवा दिया गया? उन्होंने ये लैटिन में लिखा है। मौलवी मोहम्मद बाकर ने पहले मुझे अपने घर में पनाह दी, लेकिन उन्होंने हिम्मत हार दी और मेरी जान बचाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जनाब वो मौलवी मोहम्मद बाकर को सजाए मौत हुई।
16 सितंबर 1857 को दिल्ली दरवाजे के बाहर आपको तोप से उड़ा दिया गया। आप 77 बरस के थे। खूनी दरवाजा, इस दिलसोज हादसे का वाहिद गवाह आज जदीद इमारतों से घिरा खड़ा है। करीब ही अम्बेडकर स्टेडियम है, जहां लोगों की तफरीह के लिए मैचों का इनेकाद होता है। मुल्क की वो अहम सड़क भी इससे दामनगीर है, जिससे हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा लहराने और अवाम से खिताब करने हमारे हुक्मरानों की गाड़ियां पूरे हिफाजती इंतजामात के दरमियान दंदनाती गुजरती हैं। इस हकीकत से बेखबर कि हिंदुस्तान का पहला मुजाहिद आज़ादी यहीं कहीं किसी कोने में तोप से उड़ा दिया गया था। कहाँ गए वो लोग जिन्होंने जान की बाजी लगाने से पहले ये तक ना सोचा कि क्या आने वाली नस्लें हमारा नाम तक जानेंगी? ऐसे लोगों की बेगरज शहादत को सलाम। मौलवी मोहम्मद बाकर को सलाम। वो सूरतें न जाने किस देश बस्तियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। जी, मेरा नाम शांति है।